Hello students of class 9th, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have started our new chapter, it is lesson number 3, coordinate geometry. Okay, in that we have studied the four quadrants, positive x axis, negative y axis, positive y axis, negative y axis, origin, then four quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. In first quadrant we have seen both the x axis and y axis are positive. In second quadrant x axis negative, y axis positive. In third quadrant both x and y are negative, and in fourth quadrant x axis is negative, y axis is negative and x is positive. ठीक है, so we have studied this much in the lesson number 3 introduction, and we have some points seen how to write the names of that point, how to plot that point. Okay, so now we are proceed further by example number 1. See the example number 1. Complete the following statements. अब इसके पहले फिगर दी है आपको, वो फिगर में पहले ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, you have given x axis and the y axis. In this is the origin, this is the x axis, this is the y axis, this is the negative x axis, this is the negative y axis, and here are some points up to 4. So 1, 2, 3, 4. Same way here there are 5 points. -1, -2, -3, -4, and -5. Here in upward there are 4 points, 1, 2, 3, 4, and here there are 4 points, -1, -2, -3, -4. So you have given this much, and some points plotting you have given, that is -3 to 4, -3 here and 4 here. You have given this as the point M. This is the point M. Then you also have given 4 to 3. This is the point B. Which point is this? B point. Then -5 to -4, and last is the 3 to 4, 3 to -4. Okay, here this is point L and this is the point S. So you have given this figure. Okay, now you have to give some questions, answers related to this. So first question is that. First question is the abscissa and the ordinate of the points B are blank and blank respectively. Hence the coordinates of B are. I am writing directly answers. Okay, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन ध्यान से देखना नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, और उसके रिलेटेड फिर आंसर देना. इसमें क्या पूछा है? एप्सिकल और ऑर्डिनेट पॉइंट कौन से है बी के. बी पॉइंट का पहले ये रहा, इसका एप्सिका क्या और ऑर्डिनेट क्या है, पहले वो लिखना है. सो एप्सिका सबको मालूम है क्या होता है. एक्सिस एप्सिका यानी जो एक्स एक्सिस पे होता है, और ऑर्डिनेट यानी जो वाई एक्सिस पे होता है. ठीक है, और उसके फिर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. सो पहले तो एप्सिका क्या है बी का. बी का एप्सिका यानी एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है 4, ऑर्डिनेट कौन सा है वाई एक्सिस देखो 3. सो हियर एप्सिका इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 3. ये पॉइंट बी के लिए. ठीक है, सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगी? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? हम ब्रैकेट में लिखते हैं पहले x की वैल्यू 4, ठीक है. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. Let us do the second question. Second question we have to do is
एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर, एम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है और उसके फिर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पहले तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, एक्स यानी एक्स एक्सिस पे कौन सा रहा है माइनस, और वाई कोऑर्डिनेट इज 4, यहां पे बी लिख देना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 and y coordinate is 4, so therefore उसकी coordinates क्या हो गए, therefore coordinates of m is क्या हुआ, m m ब्रैकेट हमें ऐसे लिखना होता है, हाँ कोऑर्डिनेट। सो पहले x एक्सिस देन y एक्सिस, दैट इज -3 and 4, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्लियर, fc का पूछे तो आपको x एक्सिस, कोऑर्डिनेट पूछे तो y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस का पॉइंट, y कोऑर्डिनेट तो y एक्सिस का पॉइंट, फिर कोऑर्डिनेट्स पहले x फिर y की वैल्यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट LR ब्लैंक एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ LR। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये पता चला। क्लियर, सो हम पॉइंट इसके लिए ले रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं, ये पता चल गया हो तो। अब पॉइंट L के लिए यानी थर्ड वन, you have to find x coordinate for L, L का x coordinate क्या हुआ, x यानी ये वाला -5 and y coordinate is, y coordinate कौन सा हुआ, y एक्सिस पे जो है वो -4, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, therefore coordinates of L is L, -5 -4, पहले x एक्सिस देन y एक्सिस, ठीक है। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। सो पहले तो इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है, x कोऑर्डिनेट S का क्या है, तो यहां पे देखो 3, और y कोऑर्डिनेट क्या है तो -4। क्लियर, पता चला। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ S इज क्या होगा, -3 and -4। क्लियर, दिस इज एग्जांपल 1। यानी आपको ऐसे कोई भी पॉइंट्स प्लॉट करके दिए हो तो आपको ऐसे उसके कोऑर्डिनेट्स और x एक्सिस y एक्सिस फाइंड करनी। सो हमें अगर हम प्लॉट भी कर रहे हैं ना, तो अगर ये मुझे ये वाला कोई पॉइंट मिला तो हम यहाँ पे लिखेंगे S इज 3 -4, M is -3 4, L is -5 -4 and B is 4 and 3। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो लेट अस डू द सेकेंड एग्जांपल। आई होप ऑल यू हैव क्लियर विद दिस, सबको पता चला होगा, राइट। ये सब आपको ग्राफ में ही करना है, डोंट डू इन अ नोटबुक। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। हमें एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। एग्जांपल 2 यानी हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये होता है हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, नेगेटिव x एंड नेगेटिव y एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके, यू हैव गिवन 5 और 6 पॉइंट्स। ओके, so 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स आपको प्लॉट करने आता ही होगा शायद, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए, बी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बी दिया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सी दिया हुआ है,
यहाँ आपको सी दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है एंड यहाँ पे डी दिया हुआ है. So A, B, C, D, E, you have to find the coordinates of these points. So coordinates find करने के लिए हम पहले x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू देखते हैं. ठीक है. So यहाँ पे साइड में लिखता हूं here coordinates of A are. A के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या होगा, A पॉइंट कहां पर है, यहाँ पे. अब देखो ये तो x एक्सिस पे ही है. ठीक है, यानी x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या होगी 4, और y पे यहाँ पे कहीं होता तो हम y की वैल्यू ले सकते, बट यहाँ पे y की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी. ठीक है, यानी कोई भी आपको एक्सिस पे सिर्फ पॉइंट दिया हो ना, तो x एक्सिस पे पॉइंट लिया तो x की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी. वैसे यहाँ y एक्सिस पे दिया है तो y की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू 0 रहेगी. वैसे ही सब जगह है. ठीक है, सो a का कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, a के x वैल्यू कौन सी है 4, y वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो 4 0. क्लियर. ठीक है, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर. b के कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, अब यहाँ पे y एक्सिस पे है, यानी y एक्सिस पे पॉइंट है, सो हमें y एक्सिस कौन सा यहाँ पे रहेगा, तो x एक्सिस हमारा कैसा रहेगा 0. क्लियर. c के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, c यहाँ पे x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा, सो -5 0. b के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, y एक्सिस पे तो x एक्सिस कैसा रहेगा 0, यानी 0 -4. e के कोऑर्डिनेट्स वहां लिखा, e के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, e के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, x एक्सिस पे तो y 0 हो जाएगा, यानी 1 0. ठीक है, यानी हम देखो e यहाँ पे e 1 0 मिला, a यहाँ पे a की क्या मिली था 4 0. आपको यहाँ अलग से ना लिखना तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. यहाँ पे हमारा मिला था 0 3, ये वाला x एक्सिस पे यानी -5, y एक्सिस 0, ये y है x 0 रहेगा, तो -4 0. So these are the coordinates of the axis A B C D E. क्लियर. सो हमें ऐसे पॉइंट्स प्लॉट किए हुए होंगे, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने रहेंगे. ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट वन. एक्सरसाइज 3.2. Exercise 3.2. Question 1. You have to do. Write the answer of each of the following questions. हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करना है. The very first one is, what is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any Cartesian point in the Cartesian plane? अब हमें कार्टेशियन प्लेन दिया होता है, यानी ऐसा दिया होगा. ठीक है, हमें इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हुई, ये वाली, वर्टिकल कौन सी हुई, ये वाली. यानी सही बोला ना, ये हमारा वर्टिकल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल. ठीक है, दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल यानी सीधा, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसा. ठीक है, सो वर्टिकल एक्सिस कौन सी रहेगी, हमारा वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस. सो वर्टिकल को हम बोलेंगे वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे एक्स एक्सिस. सो हॉरिजॉन्टल लाइन is known as x axis and vertical line is known as y axis. ओके, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, to determine position of any object in the Cartesian plane, the horizontal, other name of horizontal line is x axis and other name of vertical line is y axis.
ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। पूरा ही लिखवा दूं क्या चलेगा? ऐसा लिखवा ही देता हूं पूरा, है ना, वही अच्छा रहेगा। सो टू डिटरमाइन any point in Cartesian plane, the other name of horizontal line is x-axis, or we can also say epsica, and vertical line is y-axis, or we can say that ordinate. Clear? This is the first question. Second one, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब यहाँ पे जो प्लेन फॉर्म हो रहा है हर एक लाइन से, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे वो हमें बताना है। तो हर एक पार्ट को हमने देखा कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वो कैसे करेगा? देखो, जैसे कि ये मेरा वर्टिकल लाइन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो ये 2 लाइन से कितने पार्ट बन रहे हैं? 1 2 3 4, तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो सेकंड वन इज क्वाड्रेंट। व्हाट इज द थर्ड वन? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये 2 लाइन कहां पे इंटरसेक्ट होती है? ये पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? द 2 लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इसे हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आपको होमवर्क रहेगा, आपको पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, आपको उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन सेकंड इज होमवर्क। We will start the next one. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पता चला ना? हम 2 लाइन से कितने पार्ट्स बना रहे हैं? 4 पार्ट्स। कौन से? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलेंगे, और जो 2 लाइन हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमें कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा? वो होगा ओरिजिन पे, ठीक है। सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अभी तक हमने क्या किया था? हमें पॉइंट्स दिए होते थे, हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे। अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हमें उसको प्लॉट करना है, ठीक है। सिंपल है, ये भी इजी है। एग्जांपल नंबर 3 ले लेता हूं मैं। लोकेट द पॉइंट्स 5005 5005 25 52 -35 5 -3 -3 -5 and -5 and 6 1 in Cartesian plane, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं कार्टेशियन प्लेन में। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे पॉइंट्स रफ कर रहा हूं क्योंकि हमें प्लॉट करना है पूरा। या तो मैं पहले सिर्फ पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है। कौन से पॉइंट्स थे? 5 0 0 5 2 5 2 5 था ना? यस, 2 5 5 2 3 5 5 3 -3 5 सॉरी -3 -3 5 5 -3 -3 -5 एंड 6 1। इतने पॉइंट से हमें प्लॉट करने थे, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा x, ये y, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। कितने पॉइंट तक है? आपको 6 पॉइंट्स तक है, तो हम 6 पॉइंट की वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन रहेगा। सो पहले 1 2 3 4 5 6, या 1 2
3 4 5 तक लेते चलेगा। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ मैं 6 पॉइंट्स ले रहा हूँ, बट यहाँ पे नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, उसको एक्सटेंड करके ले लेते हैं उसको। -6। ठीक है, ये पॉइंट्स है। अब हमें प्लॉट करना है। पहला कौन सा है? 50। सो हमारा पहला हमेशा पॉइंट 50 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी हमारा ये कैसा होता है? एक्स एक्सिस, और ये कैसा होता है? वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे 5 ये वाला, वाई एक्सिस पे 0, यानी 0 तो यही है, यानी हमारा ये पॉइंट होगा कौन सा? 50। उसे ऐसे सर्कल करके आपको ऐसे लिख देना है 50। ठीक है, ये ग्राफ पेपर में करना है। 0 5। अब एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 5, 0 यहां पर है, 5 यहां पर है, तो ये हमारा हो गया 0 5। ठीक है, देन 2 5। एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 5, एक्स 2 वाई 5, यानी हमें ये पॉइंट मिलेगा 2 5। ठीक है, आपको जो ग्राफ में मिलेगा ना, यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस होंगे, ये एक बॉक्स होगा, ये दूसरा बॉक्स होगा, तो दूसरे बॉक्स पे यहाँ पे 2 आएगा, ये वाले बॉक्स पे यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, एक एक बॉक्स आपको छोड़ना है, जैसे कि देखो ये आपका ग्राफ पेपर है, समझ लो। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट्स है, सो अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूं, यहाँ पे 2 ले रहा हूं, सो यहाँ पे मेरा होगा 1 2 3 4 5, यानी एक एक की छोड़ी, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ था और 5 यहाँ पर था, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा आपका, ये आपका होगा 2 5। ठीक है, सो आपको ऐसे ग्राफ पेपर में ऐसे करना है, वर्क। ठीक है, देन 2 5 हो गया, 5 2, एक्स एक्सिस 5 वाई एक्सिस 2, यानी हमारा रहेगा 5 2। आप ये लाइनिंग ड्रॉ मत करना, चलेगा, ये मैंने स्ट्रेट है इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ की। देन -3 5, एक्स एक्सिस -3, एक्स एक्सिस पे -3 और ये 5, यानी यहाँ पे कहीं आएगा -3a और 5a, यानी होगा आपका -3 5। देन 5 -3, एक्स एक्सिस 5 वाई एक्सिस -3, नीचे आएगा कहीं पे, तो ये यहां से तो 5 -3, देन -3 -5, दोनों यहां पर है, -3 -5, तो -3 -5 एंड 6 1 दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट एक्सिस पे आएगा 6 और 1। ठीक है, आप देखो ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों 0 0 जहां पर आए ना, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू देखना है, तो वो एक्सिस पे ही रहेगा। ये 2 5 दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस एक्स माइनस वाई प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट। 5 -3 एक्स प्लस वाई -3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर पता ना चले तो पहले क्वाड्रेंट देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं एक पॉइंट, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, वैसे पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 3। लेट अस डू एग्जांपल नंबर 4। In fourth you have given one table. अब दूसरी बात, हमने जो पीछे वाला सम किया उसमें आपको स्केल भी लेनी पड़ेगी। स्केल कैसे लेंगे? हमने उसमें एक एक बॉक्स ही छोड़ा था। ठीक है, ऐसा किया था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3, तो इसमें क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट फॉर एक्स एंड वाई बोथ। एक्स पे भी वाई पे भी हमने 1 सेंटीमीटर की गैप कितनी छोड़ी? एक एक यूनिट छोड़ी, 1 2 3। अगर मैं ऐसा लिखता 2 4 5, यहाँ पे 1 2 3, तो एक्स एक्सिस में मैं क्या लेता? एक्सिस पे स्केल पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने कितने यूनिट्स छोड़े मैंने? 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, राइट।
वैसे ही y पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आप ऐसे भी आपको ऐसे स्केल लेनी है, ठीक है, थर्ड में लिख देना वो स्केल। अब हम एग्जांपल 4 कर रहे हैं, आपको एक टेबल दिया हुआ है, x की वैल्यू है -3, y की 7, x0 y -3.5, x -1 y -3, x4 y4 and 2 -3। देखो इसमें बोला गया है प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पैर्स ऑफ द नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। हमें क्या करना है, ये जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, दिस इज द x एंड दिस इज द y, उससे हमें प्लॉट करना है, ठीक है, उससे हमें प्लॉट करना है जैसे हम प्लॉट करते हैं। और स्केल कैसे लेनी है, स्केल हमें लेनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, दोनों में 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट दोनों में, ठीक है। सो मैं ये रफ कर रहा हूं, मैं वहां पे ही बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे इसमें बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्केल भी मैं ऊपर लिख देता हूं, स्केल आपको यहां पे टॉप मोस्ट में लिखनी है। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव x, ये हमारा नेगेटिव y, ठीक है। ये होता है हमारा ओरिजिन, ओके। प्लॉट कैसे करना है पता चला ना, 1 यूनिट, यानी आपको बॉक्स हो गए, एक बॉक्स पे 1 यूनिट, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसके बीच में कितने सेंटीमीटर की गैप है, 1 सेंटीमीटर। सेम वे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे, ठीक है। अब पहला पॉइंट x क्या था, -3 एंड y 7, -3 एंड 7, एक नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, यानी x नेगेटिव कहां पर है, -3 ये रहा और y 7 ये रहा। तो यहाँ पे ऐसे कैसे प्लॉट आएंगे, ये हमारा पॉइंट्स होगा -3, 7, ठीक है। उसको कुछ नाम देना हो तो दे सकते हैं, a -3, 7 ऐसे भी दे सकते हो। सेकेंड इज 0 -3.5, x एक्सिस इज 0, y इज -3.5, y पे -3.5 है, -3.5 y पे है, यानी वो नीचे होगा। -3 के बाद यहाँ पे जो बड़ी वाली जो डंडी होगी ना, आपका ये बॉक्स है, ठीक है, उसमें एक ऐसे छोटी छोटी डंडी होती है 4, उसके बाद 5th पे एक बड़ी डंडी ऐसी होती है, 2 ग्रीन होती है, ठीक है। तो ये आपका 5 पे होता है, ये भी 5 होता है। तो आपको यहाँ पे जो ऐसी डंडी होगी ना भाई, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन, वो आपका होगा पॉइंट -3.5, यानी ये हो गया हमारा 0 -3.5, ठीक है। देन होगा आपका -1 -3, दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट -1 -3, यानी x एक्सिस -1, y एक्सिस -3, तो ये पॉइंट हमारा कहीं पे यहाँ पे होगा, कौन सा है, -1 -3, ठीक है। देन है आपका 4 4, दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस 4, y एक्सिस 4, ऐसा कहीं पे होगा 4 4, ठीक है। देन 2 -3, x एक्सिस 2, y एक्सिस -3, तो 2 -3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको प्लॉट करने पॉइंट्स और ऐसे स्केल लिखनी है। पॉइंट्स जब भी प्लॉट करनी है तभी स्केल लिखने का आएगा, बाकी स्केल लिखने का नहीं आएगा, ठीक है। सो ये पता चला। सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 करा रहा हूं, क्वेश्चन सेकंड सेम जैसा था अभी वो वैसा ही है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4, -2 4
3 minus 1 minus 1 0 1 2 and minus 3 minus 5 lie. Verify your answers by locating them on the Cartesian plane. अब हमें क्या बताना है, ये जो पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें ग्राफ से दिखाना है. सो पहले तो मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूं, ठीक है. हम स्केल कैसे लेंगे, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेंगे, यानी स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है, 5 पॉइंट ले लेते हैं. ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5. This is the points. First point is -2 4. X is negative, y is positive. So x negative, y positive. यानी ये आपका पॉइंट कहीं पे देखो, ए वाली लाइन का और ए वाली लाइन का इंटरसेक्शन, यानी ये हो गया हमारा -2 4. देन x पॉजिटिव, y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा. x पॉजिटिव, y नेगेटिव, y की क्या वैल्यू है -1, यानी होगा आपका 3 -1. ठीक है, -1 0, x -1, y 0, यानी आपका पॉइंट रहेगा -1 0. 1 2 दोनों पॉजिटिव, यानी ये 1 ये 2, 1 2 यहाँ पे रहेगा, -3 -5 यहाँ रहेगा, दोनों नेगेटिव है. ठीक है, अब आप सबको पता है कि हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, यानी -2 4 कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट. 3 -1 का लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट. -1 0 देखो, ये हमारा क्वाड्रेंट पे नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस. 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट. तो बस आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके ऐसे ही दिखाना है कि -2 4 lies on first quadrant, then 3 -1 lies on fourth quadrant, then -1 0 lies on x-axis, 1 2 lies on 1 2 first quadrant, and last -3 -5 lies on third quadrant. ठीक है, इतना पता चला. सो यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर भी खत्म हो गया. मैंने बोला था थर्ड चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा, 2 एक्सरसाइज थी, दोनों मैंने खत्म कर ली. सेम है, सिमिलर है जो आपने पहले थोड़े लोअर क्लासेस में किया होगा कि भाई ग्राफ है, पॉइंट्स प्लॉट करो, पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस वाई, वही है सब. ठीक है, सो इस यहाँ तक कुछ भी डाउट हो व्हाट्सएप मैसेज कर देना. इसका टेस्ट हम देखते हैं कब लेना है, अभी कुछ सोचा नहीं है. अब हम कल से पता है हमारा ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन में स्टार्ट हो रहा है. सो हम कल से 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ तक आपका सबका कंप्लीट होना चाहिए. जैसे कि मैंने होमवर्क दिया था 3.2 में क्वेश्चन सेकंड और 3.4 में भी क्वेश्चन सेकंड. ठीक है, सो 3.3 में सॉरी. सो ये होमवर्क आप कर लेना और कल मुझे दिखाना है, कल नहीं आज शाम तक ही दिखाना है. ठीक है, सो हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. सो बाय, जय हिंद, जय भारत.